السلام علیکم۔ آج ہمارا پارٹ 2 جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں پارٹ 1 میں ہم نے اپنا ٹاپک شروع کیا تھا، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کاسمیٹک میں کون کون سے ایشو ہیں جس کی وجہ سے کاسمیٹک مینوفیکچرنگ یا بزنس میں جس میں آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ آج ہم چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ تمام دوست جنہوں نے پارٹ 1 نہیں دیکھا وہ پارٹ 1 دیکھ لیں۔ ہم نے پارٹ 1 میں جو چیز ہائی لائٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آپ نے جو ہے اپنے ورکر کو بالکل ایکسیس نہیں دینی کہ آپ کیا فیزیبلٹی بنا رہے ہیں۔ ہم اب آگے چلتے ہیں۔ پچھلے سفر میں ہم نے 2000 کا ذکر کیا، پھر 2,02,000 کا ذکر کیا، تو ہم نے ایک سمپل طریقہ جو مارکیٹنگ کا ہے، جس میں آپ جو ہے سب سے پہلے آپ کو چیز کا ڈیزائن چاہیے ہوتا ہے۔ جو بھی پروڈکٹ بنانی ہے وہ آپ کو ڈیزائن چاہیے، ڈیزائن کے بعد اس کی پرنٹنگ چاہیے، جو ایک بہت بڑا عام شخص کے لیے ایشو ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتا کہ پرنٹنگ لائن میں کیا مسائل ہیں، تو انشاءاللہ ہم کسی ویڈیو میں پرنٹنگ کے معاملات کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ آسانی کے ساتھ پرنٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور آپ پرنٹنگ کیسے کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ خود کرنا چاہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ لاہور میں رائل پارک جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا گڑھ مانا جاتا ہے پرنٹنگ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ سراؤنڈنگ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا لکشمی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد بند روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جو رائل پارک ہے اسے عام طور پہ ہی گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ پرنٹنگ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم آگے چلنے سے پہلے پرنٹنگ کے متعلق، کیونکہ پرنٹنگ کسی مینوفیکچر کی اہم ضرورت ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو ذکر کرتے جائیں کہ پرنٹنگ کو ہم مختصراً ترین ذکر کریں گے، کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مینوفیکچرنگ آف کاسمیٹک اور اس کے مارکیٹ میں آنے والے مسائل کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ مختصر ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرنٹنگ کیا ہوتی ہے۔ کسی تفصیلی ویڈیو میں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ آپ پرنٹنگ خود کیسے کرواتے ہیں۔ پرنٹنگ میں سب سے پہلے ایک ڈیزائن بنتا ہے جسے آپ بنوا سکتے ہیں، خود بھی بنا سکتے ہیں۔ خود آپ کیسے بنائیں گے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، آپ کسی سے بنوائیں۔ اس کے بعد اس کی اوور لیپنگ ہوتی ہے، یہ جو ٹیکنیکل ایشو ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اوور لیپنگ کے بعد اس کی بھی کسی ویڈیو میں ہم تفصیل کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد بنتی ہیں فلمیں، پلیٹیں، ڈائی۔ اس کے بعد پر کلر جو ہے اس کی جاب چلتی ہے، اس کی کٹنگ ہوتی ہے، پیسٹنگ ہوتی ہے، اور ایٹ لیسٹ ڈبی آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ ایک مختصر جائزہ ہے، اس کی تفصیل ہم کسی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اب آپ نے پرنٹنگ کروا لی ہے، پرنٹنگ آپ کے پاس ہے، کریم بنا لی ہے۔ کریم کے فارمولیشن آپ نے ہماری ویڈیو جو ہم نے بنائی ہیں یا ڈسکرپشن میں ہے، پریکٹیکل ویڈیو بھی اس سیریل کے بعد انشاءاللہ آئیں گی، تو اس میں تمام ذکر ہوگا کہ کیسے ہم پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں گے۔ مگر کیونکہ ہمارا بیسک ٹاپک جو ہے وہ اس ٹائم پہ فوکس جو ہے وہ مارکیٹ میں آنے والے ان لوگوں پہ ہے جو آپ کو نیچے لے کے جاتے ہیں، آپ کو گراتے ہیں، ڈبکیاں لگواتے ہیں پانی کے اندر تاکہ آپ کو سانس نہ نکلے۔ آپ نے پیکنگ کر لی، پیکنگ آپ کے ویئر ہاؤس میں آ گئی۔ اب کام آ گیا کہ اس کے سیل کا۔ ایٹ دی اینڈ آپ کوئی کام کر لیں دنیا کا، ہر کام پیسے سے مکمل ہو جاتا ہے، مگر مارکیٹنگ جو ہے وہ پیسے کے ساتھ آپ کو ٹیکنیک چاہیے، پیسے سے مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کچھ چیز بھی، یا کار بنا لیں، ہوائی جہاز بنا لیں، موبائل بنا لیں، جو چیز بھی آپ بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بننا پیسے سے ہے۔ اور مینوفیکچرنگ لوگ اسی لیے کرتے ہیں، امیر لوگ، کہ انہیں یہ آسان لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ چیز بنا لی۔ اب کچھ بھی بنا لیں اس کی اینڈ مارکیٹنگ کرنی ہے۔ کچھ کیٹیگری
ऐसी है कि जो स्टार्टिंग में कुछ नहीं बनाते, बहुत बड़े ग्रुप्स हैं, क्योंकि मैं उन ग्रुप्स को कोई प्रमोट नहीं कर रहा, ना उनसे स्पॉन्सर लिया कि उनकी यहाँ बैठ के मशहूरी करने बैठ जाऊँ। बहुत बड़े ग्रुप हैं जिनका एक नाम है, कराची से लेके तुरखम तक उनकी प्रोडक्ट है, इससे आगे भी होगी, मगर उन्होंने भी 10-10 20-20 साल अपने यूनिट नहीं लगाए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाए, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ सीखी कि आपको मार्केटिंग चाहिए, बनाना कोई काम नहीं है, बनाना कोई काम नहीं है। कोल्लू लगा लें, तेल निकल आएगा, कॉस्मेटिक का क्या है, क्रीमें बना लें, उसके बाद जो भी मामलात आप करें, एट दी एंड आपको उसकी सेल करना है, और सेल ही वाहिद फोकस है जिसे आप करेंगे तो फिर ही कामयाब हैं। प्रोडक्ट बना के आपने देखनी तो है नहीं। अब यहाँ पे आके आपकी असल ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। आप एक टीम खुद कर लेते हैं या टीम कर आप रखते हैं। खुद करते हैं तो उसके मसाइल अलग हैं, टीम रखते हैं तो उसके मसाइल अलग हैं। जो आप खुद करते हैं उसमें सिर्फ एक मसला है कि आप सीख भी रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं, और फिर आप जब टीम रखते हैं तो आपको कुछ मसाइल का इल्म होता है कि क्या सेलमैन आपसे सच्ची बात कर रहा है, क्या झूठी कर रहा है, क्योंकि मार्केट आपने खुद की है। मगर आपने पहले दिन से ही आप कुर्सी पर बैठ गए हैं, आपको सेलमैन ने, आपके सेलमैन ने, आपके जोनल मैनेजर ने, आपके बिजनेसमैन ने कहा कि आप बस साब हो गए हैं और आपने बस ये प्रोडक्ट अब हमने बेचनी है, तो फिर आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, क्योंकि नई कंपनियों को वो सेलमैन मिलते हैं स्टार्टिंग में जो कहीं ना कहीं कंपनियों के रिजेक्टेड होते हैं। 80% ऐसा होता है कि रिजेक्टेड मिलते हैं, 20% ऐसा होता है कि आपको बहुत करू बंदा मिलता है। अब जो बड़ा खिलाड़ी बंदा होता है उसे आप हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आप खिलाड़ी नहीं हैं। अब इसकी मिसाल देंगे एक छोटी सी कि गधा गाड़ी जो है, जिसे हम डोंकी भी कहते हैं, पंजाबी में खोता कहते हैं, वो सियाने कहते हैं कि वो मील चलता है, कमियार को 1.5 मील चलना पड़ता है, यानी कि उसे आगे से कभी कंट्रोल करना है, कभी पीछे से करना है, तो वो जो 1 मील का सफर है वो खोते के लिए तो 1 मील होता है, कमियार के लिए वो 1.5 मील बन जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जब 20% में आप बड़े खुश होते हैं कि मैंने ये बड़ा एक्सपर्ट बंदा जो है वो ढूंढ लिया है, अब उस एक्सपर्ट बंदे को हैंडल करना भी एक्सपर्ट का काम है। 20% चांस ये है, 80% चांस ये है कि आप जो रिजेक्ट बंदे होते हैं वो आपके साथ चिपक जाते हैं, उन्हें पता है ये नया बंदा है, अब इस पे ही हमारे दाव पेच चलने हैं। उनकी एक अक्सर उन्होंने एक पॉइंट रखा होता है, एक खास चाय का पॉइंट कह लें, कोई जूस पॉइंट कह लें, जहाँ पे उन्होंने इकट्ठे होना होता है। वो सब जो उस कैटेगरी के सेलमैन होते हैं उन्होंने सर जोड़ के प्लानिंग करनी होती है कि अब हमने क्या करना है अपनी कंपनी को नीचे लेके जाने में। आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो आपके साथ एक पैकेज जो है वो डिसाइड कर लेता है कि मैं जी 40,000 रुपया लूँगा जी आपसे, तो ना अच्छा जी अब आगे बताएं जी, आपसे टीए भी लूँगा 2.5 किलोमीटर के हिसाब से लूँगा, 2 रुपये 50 पैसे या 3 रुपये या 3.5 रुपये, जो भी आपके साथ। उसके बाद स्टे आपकी तरफ से होगा, यानी कि होटल में जो स्टे करेंगे वो कंपनी देगी। उसके बाद 200-300 आप उसे दे देते हैं। अब होता क्या है कि सबसे पहले तो वो चला जाता है मार्केट में, क्योंकि वो किसी ना किसी कंपनी का डिफॉल्टर आया होता है, रिजेक्शन माल होता है, रिजेक्शन, यानी कि
मुझे एक बहुत अहम बात इसमें याद आ गई कि हमारे वालिद साहब कहते थे कि ये जो नट होता है ना, नट बोल्ट या नट सड़क पे गिरा हो तो इसे मत उठाएं, क्योंकि वो गिरा तब है जब उसकी चूड़ियाँ खराब हो गई हैं, उसमें कोई मसाइल है। वो अगर आप उठा के कहीं भी फिट करेंगे तो वो फिट नहीं होगा। इसीलिए वो रिजेक्शन माल जो है, क्योंकि वो रिजेक्ट इसलिए हुआ होता है, वो आपके साथ चिपक जाता है, वो जाके डिस्ट्रीब्यूटर स्टैंड करता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसके क्या मसाइल होते हैं, उसमें मल्टीपल मसाइल आ जाते हैं। मल्टीपल बात इस तरह आ जाती है कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर उसके साथ इक्विपमेंट नहीं करता, कोई अंडरग्राउंड डील नहीं करता, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर डिस्टर्ब हो जाता है। और जब आप नहीं करते तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत सी गलत बयानियाँ करके आपका माल जो है वहाँ तक करवाता है और आपसे भी गलत बयानियाँ करता है। मार्केट में एक कॉटन चाहिए सेल के लिए, अब वो आपसे 10 कॉटन का ऑर्डर कर देता है कि बस आप बनाते जाएं, जा रहा है, बनाते जाएं, जा रहा है, बनाते जाएं। अब आप बना बना के थक जाते हैं, 24-24 घंटे फैक्ट्री चल रही होती है, अब वो जा भी रहा होता है, आपको नजर भी आ रहा है, मगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसकी कंजप्शन नहीं होती। जिस डिस्ट्रीब्यूटर को 1 कॉटन चाहिए उसे वो 10 कॉटन दे देता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर अगर ईमानदार है तो वो उसे कहता है कि मैं 1 कॉटन का, उसे कहता है कोई मसला नहीं, आप रखें, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर ईमानदार नहीं है, वो कहता है चलो माल आया, जो आ गया बस ठीक है, देखी जाएगी जो होगा। दोनों सिचुएशन है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी हम क्लेम नहीं करते कि डिस्ट्रीब्यूटर गलत है, 50-50 है। डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है फिर भी आप डिस्टर्ब हैं, डिस्ट्रीब्यूटर गलत है फिर भी आप डिस्टर्ब हैं। अब गलती कहाँ हुई कि आपको ये नहीं पता कि मार्केट में कंजप्शन कहाँ पे है। अब उसने जाना है लाहौर से, आपसे एक बस पे उसने बैठ जाना है, बाज़ औक़ात एक ट्रेन पे बैठ जाते हैं जिसमें इनका टाइम मुख्तलिफ दूसरे अपने माइंड सेट लोगों के साथ सेट होता है। उसके साथ इन्होंने मीटिंग करते जाना है कि उसके बाद इन्होंने जाना है डिस्ट्रीब्यूटर से 1 कप चाय पीनी है, वहीं पे बैठ के मामला तय करते हैं और उसके बाद उसने वापस आ जाना है। डिस्ट्रीब्यूटर को ने 1 कॉटन चाहिए, उसे 10 कॉटन दे के आ जाने हैं और कहना है कि इसकी आप रिटर्न डाल दें, रिटर्न डाल दीजिएगा। होता ये है कि माल का वो रिटर्न डाल देते हैं, फिर वो कहते हैं कि माल जी आपका खराब है। अब यानी कि जो फ्लो था वो 1 कॉटन का था, चले 10 कॉटन गए, यानी कि आपको इस बात से आगाह नहीं थे कि मार्केट में कितने की डिमांड है। अब इस पे वो डिमांड कैसे बढ़ाएगा, वो डिमांड को क्या करेगा और आप कैसे मालूम करेंगे कि डिमांड कितनी है। इस पर इंशाल्लाह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, हम नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाएंगे कि आप कैसे इसका किस पैमाने पर आप जो है आपको पता चलेगा कि क्या मामलात हैं। आज का जो इस पॉइंट का मरकजी हेडलाइन है जिसे आप नोट कर लें कि डिमांड से ज़्यादा कॉटन आपने नहीं भेजने, डिमांड से कम कॉटन आपने भेजने, वो चल जाएगा। अब इस पॉइंट को नोट तो कर लिया, मगर इसके जो हल हैं कि सेलमैन ने किस वजह से डिमांड से ज़्यादा कॉटन जाने वालों को कैसे हैंडल आपने करना है, कम को कैसे करना है, इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी। आपने अगर हमारा ये सीरियल हमारी चलती रहेगी, हमने इसे आपका कीमती टाइम ना ज़ाया हो, इसलिए 10 से 15 मिनट की ही वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका काम कीमती टाइम ना डिस्टर्ब हो। लिहाजा आप हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो को आप बर वक्त देख सकें। तो लिहाजा अब तक के लिए इजाज़त दें। नेक्स्ट पार्ट 3 में आपको बहुत सी मालूमात देंगे।
تو انشاءاللہ آپ کو اس مینوفیکچرنگ میں جو بنانا جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے، آپ کسی چیز کو بنا سکتے ہیں، مگر کاسمیٹک میں جو سیل کے متعلق پرابلمز ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔